You are using the device audio. Hello. Hello. Nishu. Hello. मेरी आवाज ही नहीं आ रही। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Can everybody see my slides? Yes, ma'am. Okay. All right. So today we'll start with liquidated damages and penalty under Indian and English law. Okay. I just wanted to remind you, everybody should write their names in the chat box for attendance. Just your name, nothing else, your full name. Okay. All right, so let's start. So here we have to see or we have to study the difference between the amount of damages or the type of damages that can be claimed under both these types of laws. Okay, the English law and the Indian law. Okay, so liquidated damages. So liquidated damages basically are the damages that have been already informed or are in the knowledge of the parties or have been designated or assigned to the contract at the time or during the formation of the contract. Okay, for whoever party is aggrieved or the party that faces a loss in case of breach of contract, that party would be compensated with the agreed amount. Okay. That is what liquidated damages mean. Now we'll see that what is the difference between treatment of these both under both these laws. Okay, liquidated damages are an assessment by the parties to the contract of the amount that the aggrieved party, means the party that has faced the losses, would suffer in case of breach. If there is a pre-estimate of damages, it is called a stipulation by way of liquidated damages. When the parties decide upon an amount which is very high in proportion to the loss that would be suffered by the aggrieved party in case of breach of contract, it is called a penalty. Okay, so liquidated damages, if they are very high, in that case we call it a penalty. But
in all other cases we refer to it as liquidated damages. Okay, so अभी तक सबको समझ में आया liquidated damages मतलब at the time of creation of the contract, मतलब जब contract हम form कर रहे थे उस टाइम पर दोनों पार्टीज के अग्रीमेंट के साथ एक अमाउंट असाइन कर दिया जाता है कि जो भी पार्टी ब्रीच करेगी वो पार्टी दूसरी पार्टी को एक सेट अमाउंट ऑफ मनी पे करेगी. ठीक है, इस सेट अमाउंट ऑफ मनी को हम लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं. ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हम डिसाइड कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो. अब English law states that when two parties have agreed on a stipulated amount of damages, the court should be informed of it. If the court accepts that the stipulation by way of liquidated damages, then the aggrieved party would also would get the whole of the amount agreed upon between both the parties of the damages. Okay, so जिस टाइम पर हमने लिक्विडेटेड डैमेजेस सेट किए हैं या फॉर्म किया है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद जब रीच होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही हमें कोर्ट को इन्फॉर्म करना होता है कि हमने क्या अमाउंट सेट किया है इनके फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस. जब वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है बाय कोर्ट, जो यूजुअली एक्सेप्ट हो जाती है बिकॉज वी हैव म्यूचुअली अग्रीड अपॉन इट, है ना, हमने दोनों की रजामंदी से उस चीज़ को फाइनलाइज किया है. तो द कोर्ट इज अवेयर कि हाँ इस तरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर उस केस में किसी ने भी ब्रीच किया तो उसे XYZ अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को. ठीक है, sometimes the court finds that the stipulated amount of liquidated damages is very high and is like a penalty to the guilty party. Okay, हमने अभी नॉमिनल डैमेजेस के टाइम पर ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी हम डैमेजेस क्लेम करने की बात करते हैं तो the purpose or the main motive of claiming the damages is not कि हम ब्रीच करने वाली पार्टी को गिल्टी ठहराने के लिए या उन्हें सज़ा देने के लिए वो अमाउंट पे करवा रहे हैं. ठीक है, हम वो अमाउंट इसलिए पे करवाते हैं ताकि दूसरी पार्टी जिसे नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई हो सके. ओके, हम उन्हें सज़ा देने के लिए या उन्हें पनिश करने के लिए वो अमाउंट पे नहीं करवाते. ओके, सो इन सच केसेस जब ऐसा दिखे कि अमाउंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशंस में इन सच केसेस द कोर्ट विल मेक इट्स ओन असेसमेंट. ठीक है, तो कोर्ट अपने आप डिसाइड करेगा कि कैलकुलेट करके और अकॉर्डिंग टू द डैमेजेस कॉज वो सारी चीज़ें जज करके कोर्ट डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में गिल्टी पार्टी को कितना अमाउंट रीजनेबली पे करना चाहिए. ठीक है, देन कमिंग टू इंडियन लॉ. Indian law provides greater advantage to the aggrieved party in comparison to the English law. The damages in case of breach in each case is discussed in the court and the amount which both the parties to the contract have stipulated as damages in case of breach at the time of entering into the contract are also considered. Okay, so all the things that have occurred Indian law के according जो भी नुकसान हुए हैं उन नुकसानों की भरपाई के पहले हम कोर्ट डिसाइड करता है कि एक्चुअल में डैमेजेस कितने हुए हैं. ओके, at the time of entering into the contract are also considered. ठीक है, तो जो भी बातें at the time of formation of contract decide हुई थी वो बातें भी
अंडर कंसिडरेशन ली जाती हैं। Yet the court has the option to decide on further damages for the aggrieved party. अगर उतने अमाउंट को सफिशिएंट नहीं माना जाता है जितने डैमेजेस हुए हैं अग्रीव पार्टी के, उस पार्टी के लिए उसके डैमेजेस से कंपेयर करें तो वो अमाउंट बहुत कम है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन लॉ के अंडर ये पॉसिबिलिटी है कि जो अग्रीव पार्टी है उससे ज्यादा अमाउंट कॉम्पेंसेट करने की परमिशन मिले। According to section 74, there is no distinction between stipulation of the amount of damages and penalty. If the contract is broken, the aggrieved party is entitled to get reasonable compensation assessed by the court. Liquidated damages can be distinguished from special damages. अब special damages का जब हमने केस पढ़ा था, तो अगर हम वापस जाके देखें तो स्पेशल डैमेजेस के केस में हमने ये चीज देखी थी कि जैसे ये एग्जाम्पल लिया था हमने ना, सेमीटेक बिल्डर्स और मिस्टर आहूजा का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें सेमीटेक बिल्डर्स को 1 जनवरी तक मिस्टर आहूजा को एक घर बना के देना था, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में उन्हें पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि ये मुझे मिस्टर आहूजा को रेंटेड अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा था जब तक घर नहीं बन जाता। अगर वो घर उस डेट को कंप्लीट होके नहीं मिलता है तो जितने दिन मिस्टर आहूजा को दूसरे रेंटेड अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा उतने दिन का रेंट प्लस एक घर से दूसरे रेंटेड घर में शिफ्ट होने का जो खर्चा होगा, रीलोकेटिंग का खर्चा, वो भी सेमीटेक बिल्डर्स को पे करना पड़ता, राइट। हमने ये चीज डिस्कस की थी, तो वही चीज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लिक्विडेटेड डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस से डिफरेंट है, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस के केस में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसी सिचुएशन अगर आई तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, पर इन केस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस हम पहले से अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर so under liquidated damages the amount of damages in case of breach is predetermined, ठीक है। पहले से हमने ये चीज देखी कि पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि लिक्विडेटेड डैमेजेस कितने पे किए जाएंगे इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल whereas under special damages the extent of losses due to breach are determined but the quantification of damages are not determined, ठीक है। तो स्पेशल डैमेजेस के केस में हमने क्या किया था, हमने सेमीटेक बिल्डर्स को बोला था कि आप 1 जनवरी तक मेरा घर कंप्लीट करके दो, ठीक है, क्योंकि मुझे रेंटेड घर में रहना पड़ रहा है और उसके बाद का रेंट मैं नहीं देना चाहती। अब क्योंकि सेमीटेक बिल्डर्स ने कंप्लीट नहीं किया तो हमने ये तो डिटरमिन किया था पहले से कि हम उनसे डैमेजेस क्लेम करेंगे, बट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस कि कितना डैमेजेस क्लेम करेंगे वो चीज़ हमने पहले से डिसाइड नहीं की थी। तो यही डिफरेंस है स्पेशल डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस में। स्पेशल डैमेजेस के केस में हम पहले से अमाउंट डिटरमिन नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं कि कितना डैमेज पे किया जाना पड़ेगा इन केस ऑफ ब्रीच, बट इन केस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस दैट इज प्री डिटरमिन्ड। Special damages are determined by the court depending upon the kind of losses in the case, ठीक है। जो चीज़ों का खर्चा उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से उठाना पड़ा, जैसे मिस्टर आहूजा को एक घर छोड़ना था दिसंबर में, तो उन्हें उस घर को तो छोड़ना ही पड़ा, उसे छोड़कर उन्हें दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा जिसके लिए उन्हें एक्सेस कॉस्ट उठानी पड़ेगी, तो वो भी उन्होंने किससे क्लेम करी, सेमीटेक बिल्डर्स से, ठीक है। There are certain exceptions to section 74 to the act.
In these cases, whatever amount has been fixed for a payment under breach of contract will have to be paid in full, even though the amount is far in excess of reasonable compensation. मतलब कुछ ऐसे स्पेशल एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनके केस में जो डैमेजेस पे किए जाने हैं वो चाहे बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द एक्चुअल डैमेजेस जो अकर हुए हैं, ठीक है, तो तब भी उस एक्सेप्शनल केसेस में उन्हें वो ज़्यादा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेस अमाउंट भी पे करना पड़ता है। अब ये कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज व्हेन अ बेल बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जब किसी पर्सन को फॉर एन इलीगल एक्टिविटी पकड़ लिया जाता है या पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, ऐसे सिचुएशन में फिर उनको बेल लेकर बाहर आना पड़ता है। तो बेल इज एक्चुअली एन अमाउंट ऑफ मनी जो उनके एक्सचेंज में हम गवर्नमेंट को के पास डिपॉजिट करते हैं। अब वो हमेशा भी जो क्राइम है उससे ज़्यादा अमाउंट का होता है, सो दैट द पर्सन हु इज आउट ऑन बेल डज नॉट रन अवे, ओके, so that person is not actually relieved of the illegal activities, but he is just out in exchange for some amount of money, ठीक है। जो amount of money उसके क्राइम से भी बड़ा हो सकता है, but फिर भी उसे वो amount पे करना पड़ेगा, it is not negotiable. Then, when a person appears in the court and a bond is made for performing a public duty or an act in which the public is interested, अब कोई ऐसी एक्टिविटी उस पर्सन को साइन करना पड़ता है जो उसे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करना है, और अगर उसने नहीं किया, ऐसे सिचुएशन में भी अमाउंट बहुत एक्सीडिंगली हाई हो सकता है ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस, और उसको वो पे करना पड़ेगा अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, it may be noted that this applies only to those to perform public duty and not under government authority. If government rates the bond, then under section 74 the damages will have to be paid to the aggrieved party. Leave it, don't consider this because आप unnecessary confuse हो गए, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि दो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक जहाँ पर बेल बॉन्ड साइन किया गया है और एक जहाँ पर आप कोई पब्लिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए लायबल हो इन रिटर्न फॉर एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग दैट हैव बीन दैट यू हैव परफॉर्म, ठीक है। Now let's see the example. Akriti is bound to attend court for public work on 20th of December 2008, ठीक है। तो usually a section or a team of normal society people are invited to the court, जो कोर्ट की हियरिंग को सुनकर अपना फैसला सुनाते कि जनरल पब्लिक एक पर्टिकुलर केस में उस क्या जजमेंट देती है। तो आकृति वाज कॉल्ड फॉर दैट पब्लिक वर्क और पे अ पेनल्टी ऑफ ₹3000, ठीक है। तो उसको बोला गया या तो आप वो अटेंड करिए या फिर 3000 रुपये आपको एक्सेस वो अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आप नहीं जाते हैं। She decides not to appear on that day in the court. तो अगर वो उस दिन कोर्ट में नहीं पहुंचती है, जो ड्यूटी उसे असाइन हुई है अगर वो उसे करने नहीं पहुंचती है, she is bound to pay the penalty, ठीक है। 3000 रुपये फिर उन्हें पे करने पड़ेंगे। Enhanced rate of interest. Section 74 of the Indian Contract Act states that stipulation
for increased interest from the date of breach can be considered as stipulation by way of penalty. The court can disallow the enhanced rate of interest if it is exorbitant. The following points may be noted in this regard. ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सेस ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है? Interest can be paid only if there is an express or implied agreement, otherwise it cannot be paid as damages. तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अग्रीमेंट के केस में ही इंटरेस्ट पे किया जाएगा. ठीक है, तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा इन द फर्स्ट यूनिट. नहीं, कोई नहीं बता पाएगा? No, ma'am. फर्स्ट यूनिट में भारती मैम ने कुछ नोट्स अपलोड किए हैं. ठीक है, आप लोग जैसे अभी तक मेरे क्लास लेने से पहले आप लोग देख रहे थे कि फर्स्ट यूनिट के नोट्स भारती मैम अपलोड करती थी. उन नोट्स में भारती मैम ने ये चीज़ एक्सप्लेन करी है. तो कल के लिए आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप ये दोनों टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ के आएंगे एंड आई विल आस्क एनीबडी इन द क्लास टू एक्सप्लेन. ठीक है, एक्सप्रेस अग्रीमेंट एंड इम्प्लाइड अग्रीमेंट. ठीक है, कि मैम ने क्या एक्सप्लेन किया इन दोनों की चीज में. चलिए, a stipulation for enhanced rate of interest from the date of default is treated as penalty if it is too high, but if it is reasonable the court allows recovery of the interest to the aggrieved party. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर द डेट ऑफ डिफॉल्ट इज ट्रीटेड एज पेनल्टी, जिस डेट को ब्रीच हुआ है उस डेट को ही अगर हम एज डिफॉल्ट मान लें, मतलब कि उस डेट को ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया, ऐसे सिचुएशन में भी इंटरेस्ट उस दिन से काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जब तक अग्रीव पार्टी को डैमेजेस पे नहीं हो जाते उस दिन तक आपको इंटरेस्ट भी चार्ज होगा. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज party may be allowed the payment of a compound rate of interest, but this is possible when the rate is not enhanced. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अपन. Amit gives a bond to Sanjeet to pay him ₹4,000 with interest. ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन दोनों के बीच में कि अमित संजीत को तो अमित संजीत को क्या बोलेगा कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया ₹4,000 पे करने का टू संजीत. ठीक है, और बोला कि वो ₹4,000 वो 15% इंटरेस्ट के हिसाब से पे करेगा पर एनम पर ईयर. ठीक है, with the stipulation that if there is a breach then the interest will be payable at 45% from the date of default. ठीक है, तो 15% इंटरेस्ट रेट पर ये चीज अग्री करी गई कि
15% इंटरेस्ट पर 4,000 रुपीज पे करे जाएंगे वापस, ठीक है। और अगर वो पे नहीं करता है 15% पे या 4,000 रुपीज भी वापस नहीं करता है, उस केस में ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा, 45% हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन से उसको पे करना था उस डेट से उसे 45% के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। This is called a stipulation by way of penalty, and Sanjeet will be allowed to only recover that amount which the court considers to be reasonable, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, क्योंकि 45% इज टू मच, है ना, 45% और 15% के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो जाता है। इस वजह से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो द अमाउंट दैट संजीत विल हैव टू that Sanjeev will have to pay will be too much in comparison to the actual amount they had agreed upon. ऐसी सिचुएशन में they can go to the court and get it settled, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे। अब ये सब जो पॉइंट्स हमने पढ़े, एनहांस रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ, इन दोनों ही चीज़ों में, इन सारे पॉइंट्स में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जो भी एक्स्ट्रा क्लॉजेस हैं सभी कवर करके बताऊं, ठीक है। तो डोंट फोकस ऑन देम टू मच, फोकस ऑन द एक्चुअल लॉज टू मच, ओके। जो हमने सूट्स पढ़ रहे हैं, जो रेमेडीज पढ़ रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करिए और मेन रेमेडीज आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम थर्ड रेमेडी पे आते हैं। अभी तक हमने 2 रेमेडीज पढ़ी है। फर्स्ट क्या थी, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकेंड थी सूट फॉर डैमेजेस, ठीक है, जिसमें हमने 4 टाइप के डैमेजेस पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये किस सिचुएशन में होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। किस सिचुएशन में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया जा सकता है। द कोर्ट कैन यूज दिस its discretion when it is essential to order the party that has made a breach of a contract to perform what was intended to be done in the contract between the parties. The law usually does not insist upon performance of the contract that a party has refused to complete, even though the aggrieved party demands justice. The reason for this is that the court considers compensation as damages to be the right measure for the aggrieved party. However, in some specific cases, court may order the guilty party to complete the contract entered into between the two parties. अब इस चीज को समझने के लिए I'll take an example. Example कहाँ गया? अच्छा, I think I have missed the slide. चलिए, तो I'll explain. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस केस में किया जाता है जब हम मान लीजिए कि किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करें। जैसे मान लो कोई डांस परफॉर्मेंस है या कोई सिंगिंग परफॉर्मेंस है, इस तरह के परफॉर्मेंसेस के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है। मान लो कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए विल परफॉर्म ऑन स्पेसिफिक डेट, ठीक है, और बी क्या करता है, उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए हॉल बुक करता है, सारी तैयारियां करता है, टिकट्स बेच देता है, ठीक है, सारी चीज़ें रेडी कर लेता है। एंड एट द लास्ट मोमेंट जब बी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मना कर देगा, मतलब जिसको परफॉर्म करना था वो इंसान मान लो मना कर देता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे सिचुएशंस में कई बार
कोर्ट क्या करता है कि डैमेजेस क्लेम करने की परमिशन नहीं देता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कई बार ये बात डिस्कस करी कि जो भी कॉम्पनसेशन पे किया जाना होता है दैट इज नॉट treated as we can say penalty या पनिशमेंट की तरह नहीं दिया जाता है। वो चीज़, वो कॉम्पनसेशन इसलिए पे किया जाता है सो दैट जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, ठीक है। When court orders specific performance, अब यहाँ पर सिचुएशंस दो हो सकती हैं, या तो कोर्ट अलाउ कर दे, कोर्ट ऑर्डर करे उस पर्सन को जिसे परफॉर्म करना था कि अब आपको चाहे आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया और परफॉर्मेंस नहीं दी, पर अब आपको वो चीज़ पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या है? व्हेन कोर्ट विल नॉट अलाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें कंसिडर करनी होती हैं। So when court orders specific performance, in the following cases, the court can grant relief and direct the guilty party in terms of specific performance of the contract. First is where there is no standard for quantifying the actual damages that are caused to the aggrieved party by नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस जहां पर डैमेजेस कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि कितने डैमेजेस हुए हैं या हो सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट ऑर्डर करता है कि चाहे आपने पहले ब्रीच कर दिया बट अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सेकेंड केस है where the monetary compensation is not an adequate measure of the loss of the aggrieved party. In cases of contract entered into for sale of immovable property or special rare antique pieces or certain items which mean a lot to the aggrieved party and which cannot be replaced. अब ऐसी situations में जहाँ पर कोई स्पेशल चीज खरीदने की बात हो रही है, मान लो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी समझते हैं आप लोग, क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी? कोई बता सकता मुझे? Can somebody give an example for immovable property? No, ma'am. ओके, तो इमूवेबल का मतलब होता है जिसे हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुई उसके हिसाब से? लैंड, हाँ, लैंड, वेरी गुड। बिल्डिंग, हाँ, तो ऐसी Plant, चीजें जो प्लांट मशीनरी। प्लांट कैन बी शिफ्टेड, मशीनरी कैन ऑल्सो भी शिफ्टेड, ओके। हाँ, प्लांट को हम क्या कर सकते हैं? हम डिसमेंटल करके दूसरी जगह असेंबल कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट लैंड प्रॉपर्टी, कोई एंसेस्ट्रल होम है, कोई म्यूजियम है, ऐसी चीजों को हम शिफ्ट नहीं कर सकते, यस मैम। ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में, या मान लो कि कोई एंटीक पीस है या कोई बहुत ही रेयर वर्क ऑफ आर्ट है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया परचेज करने का, ठीक है। अब मैंने परचेज करने के लिए बोल दिया है तो ऑब्वियसली द अदर पर्सन जो ओनर है वो दूसरे को नहीं बेचेगा, ठीक। एंड एट द एंड मोमेंट मैं बोल दूं कि नहीं अब मैं परचेज नहीं कर सकती, तो फिर क्या होगा कि देयर विल बी अ ह्यूज लॉस टू दैट पार्टी, ठीक है। जैसे ऑक्शंस होते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, बोली लगती है, मूवीज में देखा होगा कि बहुत सारे लोग बैठते हैं और एक प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए ऑक्शन होता है कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको वो प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है या वो प्रॉपर्टी, है ना। Yes. हाँ, तो इस तरह की चीजों में अगर जिसने सबसे ज्यादा प्राइस कोट किया है अगर वो परचेज नहीं करता है तो फिर उसके अगेंस्ट भी सूट फाइल किया जा सकता है कि आपने परचेज करने के लिए प्रॉमिस किया, उसके बाद आप परचेज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना।
तो ऐसी सिचुएशंस में जहां पर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पर उसे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन से कहीं ज्यादा लॉस हो गया है, ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आपने जो चीज ब्रीच करी है वो उसको आपको फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम फिर क्लास एंड करेंगे। वेयर अ प्रॉपर्टी of the aggrieved party is held by his agent or trustee and the act is to be done to perform a trust function। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी सिचुएशंस जहां पर मान लो कि किसी ने अपने एजेंट को कोई प्रॉपर्टी दी है टू टेक केयर ऑफ इट और टू सेल इट, बट दैट एजेंट हैज नॉट बीन एबल टू एक्चुअली सेल इट। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में क्या किया जाएगा कि अग्रीव्ड पार्टी की जो प्रॉपर्टी है उसे वापस या उससे उसका पोजेशन वापस मिलने के लिए कोर्ट विल ऑर्डर। ठीक है, जो मान लो कि जो सेल होना था, जो प्रॉपर्टी सेल होनी थी या जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जाना था, उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर बाद में कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आपको ये चीज़ पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आप लोगों को कल स्पेसिफिक अलग अलग एग्जाम्पल्स दूंगी, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आई फील कि आप लोगों को हो सकता है कि ये दो पॉइंट्स में कंफ्यूज हो लास्ट वाले, है ना। तो मैं कल इनको एग्जाम्पल्स के साथ आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी स्लाइड्स आई थिंक को मिस हो गई है इसमें से। मैं आपको कल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्लीज रीड थ्रू कि हमने जितना पढ़ा है आज उतना आप लोग रीड करके कल आएंगे, कल की क्लास में फिर, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप करके लेके आएंगे। ठीक है, क्या क्या दिया था मैंने? 2 चीजों के बारे में पढ़ के आना है आपको, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, आप लोग सबने अटेंडेंस लिख दी है अपनी अपनी? Yes, ma'am. वेरी गुड, थैंक यू गर्ल्स, विल स्टॉप हियर। ठीक है, वी Thank you, ma'am. कंटिन्यू टुमारो। Thank you.